How to score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone. IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects of IAS on this platform. We had started with the questions of modern Indian history and we had already covered the questions in between the timeline of 1885 to 1947. 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ and 1947 when India got independence. And now we are discussing the PYQs of those other examinations which are conducted by the UPSC except the IAS. And the reason being, यहाँ से जो questions हैं वो repeat होते हैं, जो statements हैं वो repeat होते हैं. तो जो आज का सेशन है, we will start with question number 19. But before we start the question number 19, I would like to address the doubts of two persons asked in the comment section. One is of the Reddy Babu, Dipali. So this is a comment from a South Indian student, I guess, and they had requested to continue the session in the English so that the South Indian students could also be benefited. Firstly, thank you so much for your valuable feedback. I really appreciate the valuable feedback on our platform. So I would like to inform you that we will soon add the subtitles on the videos as you suggested. Till the time we add the subtitles, I will make sure to explain this whole session in the English as well as in the Hindi, because obviously the students are also from the South India and North India and all over India. So we would like to maintain both the languages till the time we add the subtitles. Okay. So I hope now you will be okay with it. So the other comment is from Aradhya Kumawat. Aradhya Kumawat has asked the doubts in question number 89 and she has asked the doubts with respect to the question number 96 and many other questions, but 96 क्वेश्चन पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं, तो आज के सेशन में आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. बचता है क्वेश्चन नंबर 89, तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन और आई विल आंसर योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल इटसेल्फ. ओके, ठीक है, बढ़ते हैं. हमारा आज का जो सवाल है उसमें, दैट इज ए फॉर्मर नेम ऑफ द हरिजन सेवक संघ वॉज. पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग. दूसरा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन. थर्ड इज डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर द सोशल रिफॉर्म एंड फोर्थ इज एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल्स. So what is the answer? The former name of Harijan Sevak Sangh was. हरिजन सेवक संघ का पहले क्या नाम हुआ करता था? So the answer would be the All India Untouchability League. But now let us understand the brief background of Harijan Sevak Sangh या फिर how it formed, ये बना कैसे. So clearly if we have a small idea about the modern Indian history, we know हमारे पास communal awards आए थे and along with the communal awards we had received the Pune Pact, right? पहले communal awards आते हैं, फिर Pune Pact आता है. And after the Pune Pact, right, Mahatma Gandhi got retired from the active politics and he formed the Harijan Sevak Sangh. ठीक है, but what was the Pune Pact? Pune Pact एक तरह से it was like a negotiation between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar with respect to the political representation of the depressed classes, जिसको आज के डेट में हम scheduled caste का नाम बोलते हैं. ओके, सो इस पूना पैक्ट में क्या हुआ था? कम्युनल अवार्ड्स के अंदर बात करी गई थी कि जो 71 सीट्स हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व रहेगी, लेकिन
पूना पैक्ट में इसको बढ़ा दिया गया और 148 सीट्स कर दी गई. क्लियर? So what happened that in the communal award 71 seats were provided, were reserved for the depressed classes, but in the Pune Pact these seats were done 148 seats. And at the other hand the communal award talked about the separate electorate, लेकिन जो Pune Pact है it talked about your joint electorate. So this is about the Pune Pact, but after the Pune Pact, Gandhi ji retired from the active politics and he launched or he formed his own All India Untouchability League. So this is All India Untouchability League. So when it was formed in 1932. And his objective of forming it was to eradicate the untouchability from India. And who was the first president of All India Untouchability? It was your Ghanshyam Das Birla. If you want me to write, my writing is not that good, I am improving on it. Okay, so it is Ghanshyam Das Birla. Ghanshyam Das Birla was the first president of Harijan Sevak Sangh or the All India Untouchability League, right? And the first secretary was Amrit Lal Takkar. So what about this? I'm sorry. So what about this term Harijan? He said, give me a second. Harijan means children of God. So he used this term Harijan for the depressed classes. That means these depressed classes are the children of God, whom he believed that they were being discriminated against and treated unfair. Okay, but what happened when we talk about the Ambedkar? He left the Pune Pact. Why? Because the word untouchability was removed from here. Actually B.R. अम्बेडकर जी का ये कहना था कि ये जो अनटचेबिलिटी है, आई मीन ये जो डिप्रेस क्लास है, यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये बैकवर्ड है और आपको इनको बचाने के लिए रिजर्वेशंस देने पड़ेंगे, जो कि आज के डेट में रिजर्वेशंस है. गांधी जी का ये मानना था कि आप इनको अलग से एक छुआछूत की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं. सो दे बोथ वांटेड टू हेल्प, but their perspectives were different. Okay, so this was about the Harijan Sevak Sangh. Now moving towards the next question, that is question number 91. Who of the following had regarded the Karachi session of Indian National Congress 1931 as a pinnacle of Mahatma Gandhi's popularity and prestige? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है सीतारमैया, थर्ड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ ऑप्शन है सरदार किशन सिंह. देखो फिर से बैकग्राउंड की बात करते हैं, हर चीज रिलेट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बोला गया था कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया जाएगा और 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक ऐसी कमीशन बनाई जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देगा. ओके, so in the Government of India Act 1919 it was said that the political representation of Indians would be increased and as well as a committee will be formed which would suggest a constitutional reforms. But 10 साल नहीं, 8 साल के अंदर अंदर यानी कि 1927 में ही एक कमीशन बना दी गई जिसका नाम यहाँ पे आया साइमन कमीशन. ओके, so the name is your Simon Commission. But the problem with the Simon Commission was there was not a single Indian. यहाँ पे सारे 7 white persons थे. So there was no Indian representation. So the Simon Commission was boycotted. इस Simon Commission को यहाँ पे boycott कर दिया गया by Indians.
सो दे मेड देयर ओन रिपोर्ट, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, और फिर उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया सरकार को कि आपको यहाँ पे इस रिपोर्ट को कंसिडर करना है, वरना हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को शुरुआत कर देंगे। पैरेलली जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से, और ये जो नेहरू रिपोर्ट बनी, इस नेहरू रिपोर्ट में जब 1 साल का अल्टीमेटम दिया, उस 1 साल के अल्टीमेटम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भाव नहीं दिया, तो इन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत कर दी। तो ये जो कांग्रेस है ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के अंदर बिजी थे, तो इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए हुआ था उसको एंटरटेन नहीं किया, उसको ज्वाइन नहीं किया। तो हुआ क्या फिर? जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेजर पॉलिटिकल पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं आई, तो ब्रिटिशर्स को लगा ये तो फेलियर है, इट इज अ फेलियर ऑफ दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मेन पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं आई है। तो इन्होंने क्या किया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाने के लिए, जो कि जिसके लीडर उस वक्त गांधी जी को मान रहे थे, उनको कन्विंस करने के लिए यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट होता है। इस गांधी इरविन पैक्ट में काफी चीजें होती है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है उसको रोक दिया जाएगा और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। बदले में बहुत सारी चीजें यहाँ पे और डिस्कस हुई थी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं who do not have any violence cases against them, उनको ब्रिटिशर्स जेल से बाहर कर देगी। इवन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एग्रीमेंट किया टू रिटर्न द लैंड कॉन्फिस्केटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक, और वो सारे लोग जिसने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के चलते हुए, उनके साथ आप बहुत ही लीनियंट बिहेव करेंगे, राइट। और ये सब चीजें जब हुई तो उसमें से हमारे भगत सिंह, सुखदेव जी और जो एक और हैं, उनको यहाँ पे फांसी लगा दी गई। तो जब उनको यहाँ पे फांसी लगाई गई, यहाँ पे लोग गांधी जी से बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका कहना था कि आप इस चीज को रोक सकते थे, फिर भी आपने नहीं रोका। सो दे वर अनहैप्पी एंड दे वर नॉट वेलकमिंग गांधी जी। वो सब जगह ब्लैक फ्लैग से उनको होस्ट करके वेलकम भी नहीं बोल सकते जब वो आ रहे थे। सो दे डिड ऑल विद द ब्लैक फ्लैग होस्टिंग। ओके, सो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये 3 पर्सन थे जिनकी फांसी यहाँ पे रुक सकती थी लोगों के अकॉर्डिंग, बट नहीं रुकी। एंड दिस ट्रिगर्ड अ वाइड स्प्रेड एंगर अमॉन्ग दी masses for the Gandhi's perceived failure to secure the communalism of their death sentences। तो ये जो सेंटिमेंट था गांधी के खिलाफ, इसको लोगों ने काले झंडे के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके निकाला, प्रोटेस्ट किया, राइट। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि जो पंजाब नौजवान भारत सभा है, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को चिंगारी लगाई, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने लोगों की प्रोटेस्ट के बावजूद, देयर वाज वन पर्सन, वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस पूरे सेशन को एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव पॉइंट पे परसीव किया, अ हाई पॉइंट इन गांधीज पॉपुलैरिटी एंड रेप्यूटेशन। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर हम कंसिडर करेंगे वो होगा सुभाष चंद्र बोस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड सेकेंडेड, मतलब सपोर्ट किया, had seconded the resolution on the petition in the meeting of All India Congress Committee held in New Delhi in 1947। पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, सेकेंड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड ऑप्शन है जेबी कृपलानी एंड फोर्थ ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद। सो हु इज द पर्सन, बताइए।
देखो, वी ऑल नो हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान था विच वॉज लास्ट ट्रायल, जिसके बोल सकते हैं जिसकी वजह से पार्टीशन रुकता है। फिर आता है माउंट बैटन प्लान ऑफ 1947, जिन्होंने पार्टीशन फाइनली प्रस्तुत किया। दे प्रेजेंटेड द प्लान ऑफ पार्टीशन। सो टू डिस्कस द माउंट बैटन प्लान, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनती है न्यू दिल्ली में 1947 में। तो यहाँ पे जो सपोर्ट हुआ था वो था बाय अब्दुल कलाम आजाद। ही सपोर्टेड दिस, राइट। सो बेसिकली हमें इतना पता है कि ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है ये न्यू दिल्ली में हुई थी 14 जून 1947 को। ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्कस द माउंट बैटन प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो रिजोल्यूशन था पार्टीशन का, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूव किया था और इनको सपोर्ट किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने। तो अब थोड़ा सा अब्दुल कलाम आजाद के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। Whenever you hear the name of अब्दुल कलाम आजाद, you must remember कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी है उसके लिए बहुत ज्यादा काम किया एंड इवन यहाँ पे इन्होंने इनिशियली जो पार्टीशन है उसको अपोज किया था। टाइमलाइन की अगर बात करते हैं, गांधी जी द्वारा 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, राइट, Abdul Kalam Azad supported this non-cooperation movement. If we talk about the 1923, he became the president of Indian National Congress and he became the youngest person to hold this position at the age of 35. 1930 की अगर बात करते हैं तो जो अब्दुल कलाम आजाद हैं, he was arrested and put into the jail for breaking the SALT laws. And obviously, he harmonized the Eastern and the Western ideals as well. He was a good blend of spiritual excellence with the worldly achievements. Even he was one of the co-founders with respect to the Jamia Millia Islamia University. अगर कुछ important work की बात करें जो कि अब्दुल कलाम आजाद जी के थ्रू हुआ है, so one is about the basic concept of Quran. Then he worked on the Dar-e-Wafa, Indians win freedom. ठीक है, तो ये था about this question and about अब्दुल कलाम आजाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, Who of the following took the passing of resolution on the partition in the meeting of Congress Committee 1947 as a surrender of nationalism in favor of communalism? Again, क्वेश्चन सेम चीज के ऊपर है कि 1947 में माउंट बैटन प्लान आया। ये माउंट बैटन प्लान को डिस्कस करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनी थी 1947 में, ठीक है। तो जब इस पे डिस्कशन हो रहा था तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू एंड जीबी पंत। इनमें से कौन ऐसा है जिन्होंने ये कहा कि ये जो पार्टीशन का आइडिया है इट इज लाइक अ सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर किचलू। डॉक्टर किचलू जो है उनका ये मानना था कि हम हमारी नेशनलिज्म को यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो आप हमें ये बताइए कि डॉक्टर किचलू का नाम आपने कहां और पढ़ा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करोगे तो पता चलेगा। Where have you heard the name of Dr. Kichlu with respect to modern Indian history? We had done it. We had done it multiple times. क्या हम बोल सकते हैं इन द रॉलेट एक्ट 2 पर्सन्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था? यस, so those 2 persons, one was the Dr. Kichlu and Dr. Saifuddin Kichlu. So he was a very prominent freedom fighter and barrister and he was also known for the Hindu-Muslim unity. ठीक है,
तो ये आपके जो रॉलेट एक्ट है उससे भी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? द पीरियड ऑफ द मूवमेंट वॉज फ्रॉम 1920 to 21। गलत बताना, मतलब 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। दैट इज द पीरियड ऑफ मूवमेंट वॉज फ्रॉम 1920 to 21। Attainment of Swaraj within a year was its motto. It comprised the program of boycott. M.A. Jinnah had supported this movement. तो क्या आंसर है इसमें? गलत स्टेटमेंट कौन सा है? M.A. जिन्ना ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। बाकी ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो बात कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। सो फ्रॉम दिस वी विल बी कंटिन्यूइंग इन दी नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे के ये जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है? बिकॉज दोनों क्वेश्चंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ही रिलेटेड हैं, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 96 इज अबाउट द साइमन कमीशन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी। तो यहाँ पे उनकी जो लीडर है वो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही था। अगेन वी विल बी वेलकमिंग all the valuable feedbacks on our platform, and if you're really liking our initiative, please do support us by subscribing our channel and do like and share. Thank you so much.